कर सकते हैं। Good morning, students. Myself Himanshi, and I welcome you all on Diapsy platform. And I will be taking your setting up of businesses, this particular subject. Okay, so this will be our first class. So let's start our class with today's motivational quote. That is, if you can dream it, you can do it. ऑब्वियसली जब आप किसी भी सपने को देख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो काबिलियत है कि आप उस सपने को सच कर सकते हो। बट करना क्या है कि हमें फोकस रहकर अपने गोल पर फोकस करना है, एंड हर दिन हमें उसके लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। आपका बिग ड्रीम है, उसको आप बिग गोल को स्मॉल स्मॉल गोल्स में डिवाइड करो। हर दिन का अपना टारगेट बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करो। यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट। Okay, so with this positive thought, let's just start with our first lesson. Okay, so today we are going to start with the chapter that is choice of business organization. Okay, okay, so first we need to understand what is business organization, right? That is what we need to study first. Okay, so business organization, it means business organization refers to all the necessary arrangement required to conduct a business in an optimized manner. ठीक है, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इसमें आप वो सारे अरेंजमेंट करते हो जिससे आप सक्सेसफुली एक बिजनेस को कंडक्ट कर सको, ठीक है, इन एन ऑप्टिमाइज्ड मैनर। ठीक है, नाउ इट refers to all those steps that need to be undertaken for establishment and for maintaining relationship between men, material, machinery to carry on business effectively for earning profit. ठीक है, अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो क्या एक अकेला पर्सन बिजनेस सेटअप कर सकता है? सो आंसर इज नो। क्या विदाउट मनी बिजनेस कर सकते हैं? आंसर इज नो। सो व्हाट यू नीड टू कंडक्ट एनी बिजनेस, ठीक है, we need manpower, we need material, we need land, we need machinery, we need capital. Okay, we need all these things. Okay, so a business organization is what? In this we are taking all those steps that we need to undertake for establishing and maintaining the relationship between man, material, machinery to carry on the business efficiently for earning profit. ठीक है, तो हम इन सब के बीच में क्या करते हैं? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं so that हम अपना जो बिजनेस है वो efficiently कंडक्ट कर सके फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मेन गोल क्या होता है किसी भी बिजनेस का? सपोज अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो क्या सोच के आप बिजनेस करो कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है ना? Now, this may be called the process of planning, organizing, which are the integral part of business management. अब देखो ये आप कैसे रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, कैसे हम ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है? सो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ अगर हम बात करें टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, सो द मेन टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर like as you can see here, sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family, the limited liability partnership, section 8 companies, cooperative society, private company and public company. ठीक है, तो ये क्या है? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल कोई अकेला पर्सन है, मैं हूं, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ अकेले, ठीक है, सो दैट विल बी द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब आगे हम इसको ना डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। Wait a second.
ठीक है। Okay. Now, choosing a form of business entity is a crucial to a successful organization. Now, choice of a business entity will depend on the object, the nature, and the size of business or such entity, which will be varied from case to case basis and will depend upon the will of the owner of the business entity, which they want to accomplish. अब देखो, अगर मैं बात करूं, इतनी सारी आपके पास चॉइसेस हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट करना चाहते हो। अब ये जो डिसीजन होता है कि भाई मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है, पार्टनरशिप, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये डिपेंड करता है केस टू केस। वो वेरी करता है कि जो आपका ओनर है उसकी विल के ऊपर कि भाई वो क्या चाहता है, किस टाइप का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, अब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट? आप किस आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज आप क्या चाहते हो, क्या नेचर है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी चॉइस ऑफ बिजनेस एंटिटी। क्लियर हुआ? किन किन सारी चीजों के ऊपर मैंने क्या बताया आपको कि अच्छा, अगर मैं जो मैंने बताया है उस पर अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है मेरा? क्वेश्चन है कि which of the factor determine which of the factor influence the decision about the choice of business organization? ठीक है, सपोज अगर मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, यहाँ पर मैंने बोला ऑब्जेक्टिव, नेचर, साइज ऑफ बिजनेस और ऑल ऑफ दी अबव, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? अब बताओ, आप बताओ जरा कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी चॉइस, आपका डिसीजन अबाउट द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी करता है, नेचर भी करता है, साइज भी करता है, देन क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर हुआ? समझ आया? क्लैरिटी आई? चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर हम बात करें मेन टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन सी मेन टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी है: सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ब्रांच ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गारंटी कंपनी, सब्सिडी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। इन सभी को डोंट वरी, हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जस्ट वेट, ठीक है ठीक है, okay, so my question is, which of the following is not a type of business organization? ठीक है, now my first option is for you: partnership, private company, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ओके, एंड प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, or none of the above. So what will be your answer? Your answer will be none of the above. Clear हुआ? ठीक है, चलो ठीक। ओके, ठीक है, समझ आया? और क्वेश्चन भी मैं आपको बता रही हूँ, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको पहले ही दे देती हूँ। जब आप ये वीडियो देखोगे देन एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप चाहते हो कि भाई आप सब
हम सभी यही चाहते हैं कि भाई एक बार हम पढ़ें और हमेशा वो चीज याद रहे, एग्जाम में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए जो बेस्ट ट्रिक है दैट इज, जब भी आप किसी चीज को रीड करो, ठीक है, रीड आपने कर लिया, पढ़ लिया, लर्न कर लिया, देन उस चीज को तुरंत क्या करो, आप इम्प्लीमेंट करो। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, देन आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, पढ़ना नहीं है, वो क्वेश्चन आपको लिखना है, जितना भी आपको समझ आया वो लिखोगे आप। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक्सप्लेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस टाइप। एंड बिलीव मी, अगर हम ऐसे स्टडी करेंगे, आपको पेपर में बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और ये चीजें आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। आई गारंटी यू, आई एश्योर यू। ओके, चलिए ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, what we understand by this term? So sole proprietorship is a form of business where one person own all the asset of the organization. No legal formalities are required to create a sole proprietorship other than appropriate licensing to conduct a business and registration of business name if it differ from that sole proprietorship. Now, the owner report income loss from the business along with his personal income tax return. अब देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें सिंपल वे में, अगर हम समझे कोई एक पर्सन है, अगर वो बिजनेस कोई स्टार्ट करता है अकेले, सारी एसेट उसकी है, सब कुछ उसका है, देन दैट विल बी सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई ऐसी एसेट, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है इस केस में, राइट, अदर देन आपको एक एप्रोप्रिएट लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है, उस बिजनेस को कंडक्ट करवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस नेम, अगर आपका जो बिजनेस नेम है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, देन इन दैट केस रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, ना अलग से आपको मतलब अपनी बिजनेस की इनकम डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप जो अपना इनकम टैक्स फाइल करते हो उसी में आप अपनी पर्सनल इनकम में दिखा सकते हो। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है छोटू, ठीक है। अभी छोटू क्या कहता है, छोटू सोचता है पढ़ तो लिया, अब नौकरी करनी नहीं है, अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। छोटू ने क्या किया, एक एक छोटी सी शॉप उसने खोल ली, ठीक है। नाउ अब ये छोटू की शॉप है, जितना भी सारा यहाँ पर सामान लगा है वो बेसिकली क्या है, छोटू की एसेट है ना। अब तो ये जो शॉप है इसका ऑनर कौन है, छोटू, सिर्फ छोटू। ओके, देन इन दैट केस दिस विल बी बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। Okay, next is partnership. So basically, partnership firm are created by drafting a partnership deed among the partners, and the partnership deed is registered to make a firm. Okay, and partnership firm in India are governed by Indian Partnership Act 1932. Maximum number of partners in a partnership firm can be 20 partner, and the profit and loss are shared in a manner as agreed in पार्टनरशिप डीड। अब देखो यहाँ पर समझते हैं पार्टनरशिप फर्म क्या है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कैसे होती है, इसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। पार्टनरशिप डीड अभी सिंपल वे में समझो कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बेसिकली वी कैन से वी कैन टर्म्ड एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर जो पार्टनरशिप डीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड टू मेक अ फर्म। अगर आपको फर्म बनानी है देन इन दैट केस आपको जो पार्टनरशिप डीड है, जो आपका एग्रीमेंट है, वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। नाउ अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म को कौन रेगुलेट करता है, कौन गवर्न करता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और सारी फॉर्मेलिटीज हैं, राइट, वो सारी चीजें आपके लिए लॉस कौन बनाता है, कौन सारी चीजें देखता है, जो हमने यहाँ पर हमारे लॉ ने एक अलग एक्ट सेटअप किया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पार्टनरशिप फर्म सेट करता है।
ठीक है, कौन सा है एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि just wait a second, okay. तो क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि which of the following act governed the partnership firms? फर्स्ट आ जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सपोज मैंने दूसरा ऑप्शन दे दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 53, थर्ड दे दिया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1960 और फोर्थ इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1958। तो क्या होगा राइट आंसर बताओ? राइट आंसर विल बी द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर हुआ? बताओ। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको और बताई थी, वो क्या चीज बताई थी कि पार्टनरशिप के केस में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। सो जो मैक्सिमम मेंबर्स अलाउ किए गए हैं अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज 20 मेंबर्स। कितने मेंबर्स किए गए हैं? 20 मेंबर्स। ठीक है, और जो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो शेयर किया जाता है जैसा आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है। अब फॉर एग्जांपल छोटू था, हमने छोटू की बात की थी। अब छोटू सोचता है कि भाई अपना बिजनेस बड़ा करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। वो क्या करता है, उसका दोस्त था एक मोटू, है ना, तो ये है मोटू, अच्छा मोटा बना देते हैं इसे, ठीक है। और एक था सोनू, ठीक है। अब वो सोचता है कि यार क्यों ना बिजनेस अपना एक्सपेंड किया जाए, तो उसके लिए भाई ज्यादा मनी चाहिए। अपनी शॉप को वो चाहता है कि अलग अलग विलेजेस में हम सेटअप करें, अलग अलग शहरों में हम सेटअप करें, उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो सोचता है कि क्यों ना अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जाए। अब पार्टनरशिप के लिए पार्टनर तो चाहिए ना, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 20। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20। तो इन तीनों ने किया पार्टनरशिप। अब इन्होंने एग्रीमेंट बना लिया, पार्टनरशिप डीड तो बनानी पड़ेगी भाई। उन्होंने बोला कि भाई छोटू जो है 50% प्रॉफिट लेगा, मोटू जो है 25 और सोनू भी 25। उन्होंने पार्टनरशिप डीड में और भी सारी उन्होंने चीजें मेंशन की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, 1 लाख में से छोटू को कितने मिलेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कितना मेंशन था? 50%, मतलब 50,000 किसके हुए? छोटू के। 25,000 किसके हुए? मोटू के। 25,000 रेस्ट किसके हुए? सोनू के। दिस इज व्हाट, दिस इज पार्टनरशिप। क्लियर है? ठीक है। आगे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट इज इन शॉर्ट नोन एज HUF. Now a Hindu undivided family can come together and form a HUF, मतलब कोई भी हिंदू फैमिली, ठीक है, कोई भी हिंदू फैमिली एक साथ आकर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेट कर सकते हैं। Now जो HUF होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, इट इज टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। उसमें जो टैक्स पे किया जाता है हर एक मेंबर को अलग से पे करना पड़ता है। Now one can save taxes by creating a family unit and pooling in asset to form a HUF. अच्छा, तो HUF की अगर हम बात करें तो HUF में हमने क्या बोला कि जो HUF है यहाँ पर जो टैक्स पे किया जाता है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, उसके मेंबर से सेपरेट होता है, अलग से, ठीक है ना। अब अगर हमें टैक्स को सेव करना है तो आप कैसे कर सकते हो? आपने एक फैमिली यूनिट बना ली,
सारी एसेट्स लगा ली, ठीक है, किसकी फॉर्म में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की फॉर्म में. नाउ HUF हैज इट्स ओन पैन एंड फाइल टैक्स रिटर्न इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. अब इसके बारे में समझते हैं. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मैंने बात की, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में फॉर एग्जांपल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अब छोटू ने सोचा कि छोड़ो दोस्तों के साथ नहीं, अपनी फैमिली के साथ क्यों ना बिजनेस करें. तो छोटू और छोटू की फैमिली और भी मेंबर थे, उसकी मम्मी, ठीक है, छोटू के पापा और छोटू का भाई, सब आ जाते हैं. उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेट करें. तो हिंदू फैमिली थी, एक साथ आए, उन्होंने सेट किया, उन्होंने बिजनेस सेट किया, दैट इज नोन एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अब यहाँ पर क्या होगा कि जो टैक्स हमें पे करना पड़ेगा वो ऐसा नहीं कि इनको अलग पे करना पड़ रहा है, छोटू को अलग, छोटी की मम्मी के अलग, छोटू के पापा का अलग, ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो टैक्स पे होता है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, उसके मेंबर से अलग होता है, ठीक है, अलग से टैक्स पे किया जाता है. ठीक है, तो जो टैक्स आप फाइल करोगे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइल करोगे. ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ठीक. Next, let's just discuss about the limited liability partnership. Now, limited liability partnership is an alternate corporate business entity that provide the benefit of limited liability of a company, but allows its member the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually agreed agreement. अब देखो एक खास बात, अगर मैं कंपनी के बारे में बताऊं, अगर आप कंपनी एज सेटअप करते हो देन वहां पर आपको क्या एडवांटेज होता है कि आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जितना पैसा आपने लगाया आप सिर्फ उसके लिए लाइबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, आपका रिस्क उतने तक ही लिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बिजनेस में सपोज इन्वेस्ट किए थे, मतलब ठीक है, किसी बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किए थे 50,000. लिमिटेड लाइबिलिटी अगर वो पार्टनरशिप है देन इन दैट केस वहां पर क्या होगा कि जो अगर मुझे लॉस होता है, फॉर एग्जांपल कंपनी को लॉस हो 20 करोड़ का, लेकिन मैंने तो भाई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ज्वाइन की थी, मैं तो भाई अपने शेयर तक ही लाइबल हूँ. मतलब मैंने कितने का शेयर था मेरा 50,000, वहीं तक मैं लाइबल हूँ, उससे ज्यादा मैं पे नहीं करूंगा, नहीं लॉस बेयर करूंगा. समझ रहे? दिस इज व्हाट लिमिटेड लाइबिलिटी इज. ओके, आई होप क्लियर है. ठीक है, एग्जांपल इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो. ठीक है, ओके. अब देखो कंपनी के, जैसे मैंने बताया कि कंपनी की खास बात क्या होती है, कंपनी की अगर मैं बात कर रही हूँ, कंपनी का मोस्ट एडवांटेज होता है कि जो लाइबिलिटी होती है यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. बट यू नो कंपनी में अगर यहाँ पर हम देखें तो शेयर होल्डर्स होते हैं कितने सारे. वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी इंटरनल अफेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग राइट होता है उनके पास. तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं. तो यू नो अब जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो ये एडवांटेज तो एंजॉय करते हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेज बोलते हैं, डिसएडवांटेज तो हम लेंगे नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. तो बेसिकली क्या होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, जो पार्टनर्स के बीच में जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, एंड पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने टर्म्स में, जैसे उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही अपने अफेयर्स को मैनेज करते हैं. ठीक है, सो उनकी जो म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट था उसके बेसिस पे वो अपना बिजनेस चलाते हैं, सिंपल. ठीक है, अच्छा यहां पर अगर मैं बात करूं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए जो एक्ट है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ठीक है, 2008 पार्टनरशिप के लिए कौन सा था बताओ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. क्या है 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए 2008, रट जाओ इसे. ठीक है,
और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या है? 1932। क्लियर हुआ? जितना पढ़ा है अभी तक समझ आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ठीक है, now if we talk about the cooperative society, तो cooperative society and cooperative organization is an association of a person usually of limited means who have voluntarily joined the together to achieve a common economic and end through the formation of democratically controlled organization, making equitable distribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefit of the undertaking. देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सोसाइटी के कॉर्पोरेशन के लिए, बेनिफिट के लिए होती है। तो यहाँ पर जो मेन एम है दैट इज नॉट प्रॉफिट मेकिंग। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि कुछ पर्सन है, ठीक है, जो कि वॉलंटरली इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ABCD, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब किसी भी पर्पस के लिए बनाई जा सकती है। उन्होंने सोचा कि जो भी ग्रोसरी आइटम होता है, ग्रोसरी जो भी आइटम होता है वो बाहर हमें बहुत महंगा मिलता है, तो उन्होंने सोचा हम एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जहां पर हम क्या करेंगे कि ये जो ग्रोसरी वाला जो डेली यूज का आइटम होता है, हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, हम उसको बल्क में बाय करेंगे एंड देन जो भी लोग परचेज करना चाहते हैं हम उन्हें बिल्कुल लो मार्जिन पे सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल ए ने लगाए 50,000, तो यहाँ पर क्या था, मेन मोटिव क्या था, सोसाइटी का वेलफेयर, कि भाई लोगों को बाहर से हायर प्राइस में पैसे में सामान मिल रहा है, क्यों ना हम उन्हें लो प्राइस में अवेलेबल कराएं, इसके लिए उन्होंने बनाई थी। तो फॉर एग्जाम्पल ए ने वॉलंटरी ज्वाइन किया, बी ने भी सोचा चलो ठीक है अच्छा काम है हम भी ज्वाइन करते हैं, बी ने भी 50,000 लगाए। ए थोड़ा अमीर था, उसने बोला मैं तो 1 लाख लगाऊंगा। डी बोलता अच्छा तुम 1 लाख लगाओगे तो हम 2 लाख लगाएंगे। ठीक है, अब जहां पर फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने उनकी जो सेल हुई थी वो हुई थी 2 लाख की। अब 2 लाख में से भाई आपको तो पता ही है कि उन्होंने बहुत कम मार्जिन पे सबको सेल कर रहे थे, तो 1.5 लाख का कॉस्ट आई, तो 50,000 बचे। अब 50,000 बचे तो ये 50,000 देन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल सब कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of the environment और any such object। देखो कोई भी ऐसी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी सेटअप करती हूँ साइंस को प्रमोट करने के लिए, या किसी भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, then in that case that company will be the section 8 company। okay, provided that the profit, if any, or any other income is applied for promoting only the object of the company and no dividend is paid to its member। ठीक है, so section 8 कंपनी are registered under companies act 2013। अगर मैं section 8 कंपनीज की बात करूं तो पहली बात ये समझो कि ये जो कंपनी है कहाँ रजिस्टर्ड की जाती है, कंपनीज एक्ट 2013। कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेके जरा समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझो कि ए बी सी डी है, उन्होंने सोचा कि ठीक है हम ना एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए छोटा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव था कि सोसाइटी में एजुकेशन को प्रमोट करना। सो दिस कम्स अंडर द सेक्शन 8, क्योंकि सेक्शन 8 में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, एजुकेशन, रिसर्च, साइंस को प्रमोट कर रहे हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, एक्सेट्रा। अब ये कहाँ रजिस्टर करवानी पड़ेगी आपको? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रॉफिट होता है 1 लाख, तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ आपको, या जितना भी प्रॉफिट हुआ, वो आप क्या करोगे, जो आपका एम है एजुकेशन को प्रमोट करने, जो भी आपका एम है उस ऑब्जेक्ट के लिए लगाओगे। जो भी पार्टनर्स है उनको डिविडेंड या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये टोटली सोशल वेलफेयर के लिए है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज डन सेक्शन 8 कंपनी. सो वन पर्सन कंपनी. So an OPC means a company with only one person as a member shareholder and can make only one nominee. He shall become a shareholder in case of death and incapacity of original stakeholder. देखो वन पर्सन कंपनी बेसिकली क्या होता है, इसमें से वन पर्सन होता है एज अ मेंबर और द शेयर होल्डर, और वो एक पर्सन को नॉमिनी बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर उस शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, देन इन दैट केस सारा स्टेक उसे मिलेगा. ठीक है. प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं, देखो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे. सबसे पहली चीज समझो, प्राइवेट कंपनी है तो वहां पर जो शेयर होल्डर राइट है वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्राइवेट कंपनी का शेयर परचेज किया, तो अब जो मेरा राइट है डिविडेंड लेने का वो मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती. नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2. मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 20. मिनिमम 2, मैक्सिमम 20. इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर डिबेंचर इज प्रोहिबिटेड. मतलब प्राइवेट कंपनी में बेसिकली क्या है, देखो सबसे पहले तो जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है. मिनिमम मेंबर कितने हैं 2, मैक्सिमम कितने हैं 20 है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पर समझो कि पब्लिक को क्या तुम शेयर सेल कर सकते हो, पब्लिक को शेयर दे सकते हो क्या, आंसर इसको. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होती हैं तो वो कंपनी क्या है, बेसिकली पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सॉरी. ठीक है. क्या है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी. चलो ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. ओके, नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पब्लिक कंपनी. देखो पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर जो है अपना राइट ट्रांसफर कर सकती है. मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो. ठीक है, क्या समझे. पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात कर रही हूँ, पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफरेबल है क्या, बताओ. ट्रांसफर कर सकते हो, आंसर इज यस. मिनिमम कितने चाहिए, प्राइवेट में कितने थे 2, यहाँ पर कितने हैं 7. मैक्सिमम की लिमिट है क्या, आंसर इज नो. क्या पब्लिक सब्सक्राइब कर सकती है, आंसर इज यस. क्लियर हुआ. ठीक है, चलो ठीक. नेक्स्ट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मुझे आपको बताना है. पब्लिक कंपनी तो हमने पढ़ लिया, अब एक होती है गवर्नमेंट कंपनी. डिफरेंस समझो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं पब्लिक कंपनी और उनको गवर्नमेंट कंपनी सेम लगती है, बट ऐसा नहीं है. अगर आपने अपने शेयर्स को लिस्ट कराया है, इफ शेयर्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल है, इसका मतलब वो कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है. गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, अगर उसमें 51% से ज्यादा जो शेयर है, अगर वो गवर्नमेंट का है तभी वो गवर्नमेंट कंपनी है. क्लियर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. ओके, now let's just talk about the choice of business organization. Like essentially company could be either private or public. या तो कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी. पब्लिक कंपनी कुड बी लिस्टेड, अनलिस्टेड. ठीक है. अ पर्सन मस्ट सिट डाउन एंड केयरफुली कंसीडर ऑल द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ एंटिटी बिफोर चूजिंग वन ऑफ द फॉर्म. अब देखो अगर आपको चूज करना है कि भाई क्या करूं, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो वो डिसाइड करने के लिए जरूरी है आपको पहले डिसएडवांटेज एडवांटेज सबके पता हो, देन सो दैट अकॉर्डिंगली आप क्या कर सको, डिसाइड कर सको. सो आपको हर फॉर्म के मेरिट्स डिमेरिट्स पता होने चाहिए. ठीक है. Now the right choice है of the form of business organization is very crucial because it determines the power, control, risk and responsibility of an entrepreneur as well as division of profit and loss. ठीक है. Now, a selection of a suitable form of organization is an important entrepreneurial decision because it influences the success and growth of a business. देखो ये बहुत ज्यादा important है कि एक proper suitable type of business organization आप select करो, otherwise क्या होगा, आपकी success को, आपकी growth को, organization को बहुत ज्यादा ये affect करेगा. ठीक है.
Now, factors governing the decision for suitable. ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली गवर्न करते हैं आपके डिसीजन को कि आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप चूज करना है। सबसे पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि किस टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हो, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर हैविंग अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द चॉइस ऑफ अ फॉर्म ऑफ ownership. Now, in small trading companies, business, profession, rendering of personal service, sole proprietor is predominant. For example, अगर आपकी स्मॉल ट्रेडिंग फर्म है या आप अपनी पर्सनल सर्विस देना चाहते हो, then that case sole proprietorship बेस्ट होगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल्स लाइक ब्यूटी पार्लर्स हो गए, रिपेयर शॉप्स हो गए, कंसल्टिंग एजेंसी हो गई, स्मॉल रिटेल स्टोर हो गए, तो इनके लिए क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, क्योंकि अकेला पर्सन है, वही काम कर रहा है, ठीक है, वो काम कर सकता है, अच्छा आपका बिजनेस चल सकता है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की उसमें जरूरत होती नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप किस केसेस में सुटेबल होगी, जहां पर partnership is suitable in all those cases where sole proprietorship is suitable, providing the business is to be carried on slightly bigger scale. अब देखो, अगर आप एक स्मॉल रिपेयर शॉप चलाना चाहते हो अपने एरिया में, स्मॉल छोटी सी रिपेयर शॉप, देन इन दैट केस सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। लेकिन आप चाहते हो बड़ी सी मैं रिपेयर शॉप और सिटीज के अलग अलग जगह पे मैं स्टार्ट करूं, देन इन दैट केस इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस को बिगर स्केल, थोड़ा सा बड़े स्केल पर करना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट है पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सम ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस that find this form of advantageous are tax accounting, stock brokerage firm and consulting agency। जैसे जितने भी स्टॉक ब्रोकरेज, टैक्स और अकाउंटिंग फर्म्स होती है, वो बेसिकली सर्विस जो पार्टनरशिप फर्म टाइप है उसे चूज करते हैं, ठीक है। सर्विस इन एंटरप्राइज लाइक होटल्स, लॉजिंग प्लेसेस, ट्रेडिंग कंपनीज, होलसेल ट्रेड, रिटेल हाउसेस, ये जो सारी होते हैं, दिस इज अंडरटेकन इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बिजनेस लाइंस की, सच एज कैरिंग लार्ज चेन स्टोर्स, मल्टीपल स्टोर, सुपर बाजार, तो वो आ जाते हैं कंपनी में। अगर हम मैकडी की बात करें तो बेसिकली क्या है, चेन स्टोर है ना। तो देन इन दैट केस आप सिर्फ पार्टनरशिप से काम नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, यू नीड टू फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन एज कंपनी, ओके। Now, when the person intending to start a business wish to launch a business organization clothed with a legal entity and incorporate firm with a feature of having their sole ownership and control, they may decide for 1% company। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी में डिफरेंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लीगल एंटिटी नहीं है, आपका कॉर्पोरेट फॉर्म में आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप चाहते हो अकेले आप बिजनेस करना चाहते हो और आपको क्या चाहिए कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीगल एक स्टेटस होना चाहिए, कॉर्पोरेट फॉर्म में चाहिए, एट द सेम टाइम आप सोल ओनरशिप चाहते हो, तो ओपीसी 1% कंपनी इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एलएलपी। सो such entities have gained popularity nowadays and the major advantage of such entity is liability। यहाँ पर जो मेन एडवांटेज, अगर आपको चाहिए कि भाई कंपनी की पार्टनरशिप हमें करनी है लेकिन लाइबिलिटीज लिमिटेड रखनी है, ठीक है, देन इन दैट केस एलएलपी इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें स्केल ऑफ ऑपरेशन, देखो स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत मैटर करता है। आप किस स्केल पर बिजनेस करते हो, किस स्केल पर बिजनेस करना चाहते हो, वो बेसिकली बहुत मैटर करता है कि आपको किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बनानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे एमएसएमई की, ठीक है, सो अगर हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात करें, माइक्रो मतलब जो स्मॉल स्केल पर वर्क कर रही है ना, स्मॉल मतलब कि जो माइक्रो से अबव लेवल पर वर्क कर रही है, मीडियम लाइक मीडियम इन्वेस्टमेंट है उसकी, ठीक है। तो देखो माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होती है, सपोज अगर आपने पैसा लगाया, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में, इक्विपमेंट्स है, अगर वो 1 करोड़
है और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, टर्नओवर मींस योर सेल्स, इन्वेस्टमेंट आपने पैसा लगाया 1 करोड़, सेल आ रही है 5 करोड़, मतलब आपकी कंपनी कौन सी है, आपकी माइक्रो एंटरप्राइज है। अगर सपोज आप इन्वेस्टमेंट लगा सकते हो सिर्फ 1 करोड़, आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड है टर्नओवर 5 करोड़ हो जाएगा, इसका मतलब माइक्रो कंपनी है। ओके, सेकेंड इज स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती है, अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ का है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, देन मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज है। मीडियम कौन सा होता है, 50 करोड़ आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और अगर आपका जो सेल्स है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए 150 करोड़ से। ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। Now the second factor that affect the form of business organization is the scale of operation. If the scale of operation of business is small, अगर देखो small scale पर business करना चाहते हो, activity business activity करना चाहते हो, sole proprietorship, one person company suitable. Modest scale रखना चाहते हो, ना बड़ा ना ज्यादा छोटा, तो पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्लियर है, वो आप चूज कर सकते हो, वो प्रेफरेबल होगा। लार्ज स्केल पर करना चाहते हो तो क्या है, कंपनी बेस्ट है। क्लियर है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अब सोचो भाई, स्टार्ट तो मुझको कैपिटल रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, देन इन दैट केस मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है, इन capital is the one of the most crucial factor affecting the choice of particular form of ownership, ठीक है। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा चाहिए, दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द टाइप ऑफ बिजनेस एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशन। एंटरप्राइज रिक्वायरिंग हैवी इन्वेस्टमेंट, अब जैसे आयरन हो गई, आयरन प्लांट हो गई, स्टील प्लांट हो गए, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, तो भाई उनको कंपनी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होना होता है। क्यों, क्योंकि भाई वहां पर पैसा बहुत चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। तो अगर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, देन प्रेफर कंपनी। अगर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट मीडियम चाहिए, देन इन दैट केस गो फॉर पार्टनरशिप, वेदर इट इज एलएलपी और द सिंपल पार्टनरशिप। कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम है, देन इन दैट केस पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी, ठीक है। अगर आप अकेले पैसा लगा सकते हो उतना, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक ना शॉप ओपन कर लेते हैं या फिर एक ट्यूशन सेंटर ओपन कर लेते हैं, उसके लिए मुझे 50,000 पैसे की जरूरत है। क्या मेरे पास 50,000 नहीं होंगी? 50,000 में मैं अपने दोस्तों से मांगूंगी? आंसर इज नहीं। 50,000 तो होंगी भाई, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट फॉर मी। वही अगर मुझे 50 करोड़ चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं क्या करना चाहती हूँ, एक फॉर्म सेटअप करना चाहती हूँ, कंपनी सेटअप करना चाहती हूँ एजुकेशन के सेक्टर में, देन इन दैट केस पैसा ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगी, तो कंपनी विल बी बेस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है आपकी चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? मैनेजरियल एबिलिटी। सोचो, Now it is difficult for a sole proprietorship to have expert in all the function area. अब ऐसा तो नहीं कि एक sole proprietorship है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, क्या मैं सारी चीजें मैनेज कर सकती हूँ? मैं बिजनेस भी चला सकती हूँ, मैं सेल्स भी कर सकती हूँ, मैं अकाउंट्स भी संभाल सकती हूँ, मैं सारी चीजें कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबकी एक्सपर्टाइज अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल माई एक्सपर्टाइज इज टीचिंग, योर एक्सपर्टाइज कैन बी सेल्स, योर एक्सपर्टाइज कैन बी मार्केटिंग, अकाउंट्स और एनीथिंग, ठीक है। सो अगर यहाँ पर बात हो रही मैनेजरियल एबिलिटी की। So for the size of organization may not permit the engagement of professional management. So in the form of organization like partnership and company, there is division of work. अब वहां पर क्या होता है, वर्क डिवाइड होता है कि ये अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग है, ये अकाउंट्स देखेंगे, ये सेल्स देखेंगे, ठीक है। Among the partners which allow to partner to specialize in specific areas, so leading to better output and decision making. However, this may sometimes lead to conflict due to difference in opinion. So company form of organization is better if the operation are far from complex in nature. मतलब अगर आपकी जो ऑपरेशन है वो सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, देन इन दैट केस प्रोफेशनल चाहिए आपको, है ना, बिजनेस को मैनेज करने के लिए गो फॉर कंपनी। अब एक बात बताओ, आपके घर के आसपास काफी सारी स्मॉल शॉप्स होती है ना, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, क्या वो कंपनी है? आंसर इज नो, क्योंकि वहां पर क्या है, इतनी ज्यादा मैनेजरियल एबिलिटी की जरूरत नहीं है, उसे हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। सो मैनेजरियल एबिलिटी अगर ज्यादा चाहिए, मैनेजरियल के ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है, देन इन दैट केस गो फॉर कंपनी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप आप चूज कर सकते हो। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट,
अगर आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट, आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल आपको काफी ज्यादा चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो आपको क्या चूज करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी। अगर आपको चाहिए कि भाई मैनेजमेंट एंड कंट्रोल शेयर्ड हो विद इन सम मेंबर, पार्टनरशिप चूज कर सकते हो, right? And in company, however, the divergence between the ownership and management, the management and control of the company is entrusted to the board, who are generally elected representative of shareholders. ठीक है? So thus a person wishing to have complete or direct control of business prefer proprietorship. अगर आपको बिल्कुल direct control चाहिए, complete control चाहिए, proprietorship use करो, वो choose करो, rather than partnership or company. If you are prepared to share with others, you can go for partnership. If the activity are large and professional manager are required to handle the day-to-day affairs, then go for the corporate structure, the company. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपके पास रिस्क, द साइज ऑफ रिस्क एंड विलिंगनेस ऑफ ओनर टू बेयर it is an important consideration in selection of form of business. Now the risk involved in the business depend among the factors like the nature and the size of the business. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वहां पर क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क विद इट कंपेयर्ड टू पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप और कंपनी से बात करूं, लार्ज स्केल पर बिजनेस हो रहा है तो ऑब्वियसली रिस्क भी ज्यादा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, बिजनेस कम स्केल पर हो रहा है तो यहाँ पर क्या है, मेरा रिस्क भी कम है एज कंपेयर टू कंपनी एंड पार्टनरशिप। क्लियर हुआ? ऑब्वियसली ना, एक बंदा कंपनी चला रहा है, दूसरा एक शॉप चला रहा है, किसका रिस्क ज्यादा है, कंपनी वाले का। However, the sole proprietorship is personally liable for all the debt of the business to extent of his entire property. Likewise, in partnership are individually and jointly responsible for all liabilities. लेकिन देखो, एक रिस्क की अगर मैं बात करूं, प्रोप्राइटर जो होता है, फॉर एग्जांपल मेरी कोई शॉप है, जो भी लॉस हुआ सबके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से वो लॉस बियर करना पड़े, मैं करूंगी। ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, देन इन दैट केस आपके पास लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनीज के केस की बात करें, देखो यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है वो बेसिकली क्या होती है, कम होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज अनदर फैक्टर दैट गवर्न द चॉइस ऑफ ओनरशिप organization. Stable business is preferred by the owner in so far as it helps in attracting suppliers of capital who look for safety of investment and regular return, and also help in getting competent worker manager who look for security of service and opportunity of advancement. From this point of view, sole proprietorship are not stable, although no time limit is placed on them by law. अब देखो, स्टेबल बिजनेस की अगर हम बात करें, ओके, सो स्टेबल बिजनेस किसके लिए प्रिफर्ड होता है? अगर जो ओनर है वो बेसिकली अपने यहाँ पर सप्लाई कैपिटल के सप्लाई को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, प्रोफेशनल्स चाहते हैं, तो उनके लिए स्टेबल बिजनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता है। The illness of the owner may derange the business and his death can lead to permanent closing of the business. अब sole proprietorship में क्या business stable है? Answer is no. Why I'm saying this? Because suppose मेरा business है, अब मेरी डेथ हो जाती है, बिजनेस तो शट डाउन हो गया क्योंकि मैं ही सोल ओनर थी। वही कंपनी होती है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी क्यों, अच्छा एमबीए सुना होगा, 100 साल पता नहीं कितनी कंपनी हो चुकी है ना, तो वहां पर क्यों 100 साल तक वो कंपनी ने बिजनेस किया है, जितने भी सालों से हो चुके हैं, बिकॉज वो वहां पर जो है बिजनेस कंपनी के केस में स्टेबल होता है। अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो गई है, देन ऐसा नहीं कंपनी शट डाउन हो जाएगी, अदर पर्सन है ना। ओके, तो स्टेबिलिटी बहुत मैटर करता है। Next is flexibility of administration. Now, as far as possible, the form of organization chosen should allow flexibility of administration. देखो कितना flexible आप अपने administration चाहते हो वो बहुत depend करेगा किस type के organization आप choose करोगे। Now, flexibility of administration is closely related to the internal organization of the business. Internal organization of the business का मतलब क्या है? The manner in which the organization activities are structured into departments, section and unit with a clear definition of authority and responsibility. अब internal organization का मतलब क्या है? Organization की activities किस manner में manage हो रही है, कौन responsible है, कौन किसको authority दे सकता है। The internal functioning of sole proprietorship business, for instance, is very simple.
भाई सोल प्रोप्राइटरशिप की मैं बात करूं, मैं अकेली ओनर हूँ, तो भाई मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे भी चेंज कर सकती हूँ, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं करने, जो भी करना है मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप के केस में भी ऐसा ही है, अगर आपको इंटरनल फंक्शनिंग में कोई चेंज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन while in case of a company the administration is not that flexible because its activity are conducted on a large scale, they are quite rigidly structured, thus in the form of structure, and any substantial change in the existing business line or business activity, so for from cotton textile to sugar manufacturing may not permit by law if such provision is not made the object clause of the memorandum of association. देखो, जैसे यहाँ पर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपनी के केस में पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत कम होती है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पर जो ऑपरेशन है लार्ज स्केल में हो रहा है, किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में चेंज आएगा देन वो आपके लिए, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी कॉटन टेक्सटाइल है, आप चाहते हो शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करना, देन इन दैट केस ये तब तक परमिट नहीं होगा अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बना है आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट इज गाइडिंग फोर्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस, इट हैज ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन सिलेक्शन ऑफ, ऑब्वियसली ना, आप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए से ये सोचकर लोगे कि भाई किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। ठीक है, now an entrepreneur desiring to pocket all the profit of business will naturally prefer sole proprietorship. अगर मैं चाहती हूँ जितना प्रॉफिट हो सब मेरा हो, तो मैं क्या चूज करूंगी? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं चाहती हूँ ठीक है पार्टनर्स के बीच में, कुछ लोगों के बीच में बांट लेंगे प्रॉफिट, तो क्या बेस्ट है? पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ अ कंपनी, in company form of business, however, the profit are distributed among shareholder in proportion of their shareholding, but liabilities of shareholders limited. अब कंपनी के केस में क्या होता है, इतने सारे शेयर होल्डर्स है, सबके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन वहां पर लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कॉस्ट, प्रोसीजर एंड गवर्नेंस। देखो किस तरह कितनी कॉस्ट आ रही है बिजनेस को सेट करने में, प्रोसीजर क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको चाहिए कि सिंपल कम कॉस्ट में बिजनेस सेट कर लूं, सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट। प्रोसीजर में इन्वॉल्व होना है, कॉस्ट हाई है, गवर्नमेंट रेगुलेशन हाई है, देन क्या होगा? कंपनी, है ना। टैक्स इम्प्लीकेशन की बात करूं, इन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्मॉलर एंटिटी की बात करूं, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो जो टैक्स लाइबिलिटी है तो वो डिपेंड करती है कितना प्रॉफिट है, लेकिन जो हाउएवर द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, तो वहां पर क्या होता है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के केस में क्या है? लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है उनके वैल्यू ऑफ शेयर पे ही। ठीक है, सो इन केस ऑफ कंपनी और एलएलपी द टैक्स लाइबिलिटी कुड बी हायर, वहां पर क्या होता है? टैक्स लाइबिलिटी हायर होती है। Next is geographical mobility. Now, the extent to which the product and service is proposed to manufacture or made available also plays a vital role in choosing the type of organization. मतलब कितना ज्यादा आप अगर एक प्रोडक्ट एंड सर्विस को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसको आप दूसरी जगह पर भी सेल कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ये जो मोबिलिटी है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। So if a concern deal with local market, a seasonal product, perishable product, or is meant to cater to a specific city or locality, then sole proprietorship, partnership form of business may be suitable. कोई ऐसा प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, लोकल मार्केट के लिए है, रीजनल एरिया के लिए, जो वहीं पर सेल होता है, वहीं के लोग पसंद करते हैं, तो क्या है, अब इसको आप दूसरी जगह जाके सेल नहीं कर सकते ना। ओके, समझ रहे हो? तो ये क्या होगा, इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सारी चीजें बेस्ट होंगी। If it is proposed to market the product all over the India, अगर आप चाहते हो कि मैं तो प्रोडक्ट बनाऊंगी पूरे इंडिया में बेचूंगी, इंटरनेशनली भी बिजनेस करेंगे, तो क्या एक छोटी सी शॉप सोल प्रोप्राइटरशिप से काम चल जाएगा? आप बताओ, नहीं चलेगा। क्या चाहिए? कंपनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप बीइंग वन पर्सन एंटिटी डजंट लेंड itself to transferability of ownership, as owner himself enjoy the profit and share, प्रॉफिट एंड लॉस। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही पर्सन है जो ओनर है।
पार्टनरशिप के केस में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं. अगर if a partner exists, the partnership may decide to induct a new partner with benefit of ownership and share of profit. पार्टनर चाहता है, एग्जिट करना चाहता है, किसी दूसरे को लाना चाहता, कर सकता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफरेबल. ठीक है, मैंने किसी कंपनी की शेयर परचेज की, मैं चाहती हूँ किसको सेल कर दूं, मैं कर सकती हूँ. मेरा जो राइट था डिविडेंड को, वो किसको मिल जाएगा, उस पर्सन को मिल जाएगा जिसको सेल कर रही हूँ. क्लियर. नेक्स्ट इज मैनेजरियल रीड. Now the managerial and administrative requirement also affect the decision about the form of organization. अगर हम बात करें स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर इतना ज्यादा कुछ मैनेजरियल स्किल नहीं चाहिए मुझे बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप है. अगर मुझे काफी एक्सपर्ट लोग, प्रोफेशनल चाहिए, कंपनी यू कैन प्रेफर. सीक्रेसी की अगर बात करूं तो सीक्रेसी अगर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंटरप्रेन्योर जो है, ऐसे एंटरप्रेन्योर सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करते हैं. Now in case he has the partner, he will willing to carefully wait whether other partner will able to maintain the secrecy. He will have to exercise great care in taking partner. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं पार्टनरशिप में मैं सीक्रेसी मेंटेन करूं, तो आपको पार्टनर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे जो आपके फर्म के कंपनी की सीक्रेट को अपने तक ही रखें. In case of a company, secrecy may be restricted to manufacturing process. अगर आपकी कंपनी की जो सीक्रेसी है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक ही लिमिटेड है, और किस वे में आप किस मैनर में आप बिजनेस कर रहे हो उस तक ही अगर लिमिटेड है, देन इन दैट केस कंपनी इज बेस्ट. इंडिपेंडेंस की अगर बात करूं, so the company is subject to strict government regulation. So if the entrepreneur want to have a freedom in business with little governmental interfere, he has to go for either a sole proprietorship or partnership. मतलब आप चाहते हो बिना किसी गवर्नमेंट रेगुलेशन के, बिना किसी गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के मैं बिजनेस करूं, सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करो या फिर पार्टनरशिप. कंपनी चूज करोगे देन वहां पर तो आपकी इतनी फ्रीडम नहीं मिलेगी. अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करें तो देखो, कंक्लूजन ये था कि कोई ऐसा एक फैक्टर तो नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सको कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चूज करना चाहती हूँ. मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके इस डिसीजन को. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है जो मैंने लिस्ट बताते हैं सिर्फ यही फैक्टर, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं. तो दीज आर द मेन वन. ठीक है, now problems in choosing the best form of organization is one of analyzing and weighting the relative advantage. अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि कौन सा आपको यूज करना चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप सेट करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप चीजों को इवैल्युएट करते हो, किस तरह से आप उनकी जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेरिट्स डिमेरिट्स को आप मैनेज करते हो. ठीक है, सो कंपनी एज अ चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टार्टअप. सो स्टार्टअप प्रेफर कंपनी एज अ बिजनेस स्ट्रक्चर. अब देखो स्टार्टअप जितने भी होते हैं वो कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर प्रेफर कर रहे हैं, कंपनी. क्यों? बिकॉज इट अलाउ आउटसाइड फंडिंग. क्योंकि वहां पर क्या होता है, आप आउटसाइड से फंडिंग आपको मिल जाती है और वो इजी होता है मिलना. एंड वहां पर क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है वो भी आपकी लिमिटेड होती है. एंड इट इनेबल देम टू ऑफर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट. अगर आप चाहते हो, स्टार्टअप है, कोई ऐसे न्यू कंपनीज में नहीं जाता है कोई टैलेंटेड कैंडिडेट. अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे यहाँ पर टैलेंटेड कैंडिडेट्स वर्क करे, देन इन दैट केस आप उन्हें ऑप्शन दे सकते हो ई सॉप्स का, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हम उनको अपनी कंपनी के शेयर्स देते हैं. ठीक है, नाउ फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें, तो फॉर बिजनेस रेजिंग फंडिंग. ठीक है, fast growing business that will require funding from venture capitalists need to register private limited company. अगर जैसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेसेस हैं जिनको फंडिंग की जरूरत होती है फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट से, सो उनको एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होना होता है. क्यों? बिकॉज ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन मेक देम शेयर होल्डर एंड ऑफर देम अ सीट ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें, सो बिजनेस ऑफ्टन नीड टू बोरो मनी इन स्ट्रक्चर सच एज जनरल पार्टनरशिप. पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट रेज्ड. सो इफ it
cannot be repaid by the business, the partners would have to sell their personal possession to do so. In a private limited company, only the amount invested in starting the business would be lost. अगर देखो हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो जितना आपने अमाउंट स्टार्टिंग में लॉस किया, स्टार्टिंग में लगाया था, आप उतने के लिए ही लायबल हो, वो आप लॉस कर दोगे, ठीक है। सो जो डायरेक्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेफ रहती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जनरल पार्टनरशिप में, तो वहां पर क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। स्टार्टअप कॉस्ट की अगर हम बात करूं, देखो स्टार्टअप कॉस्ट में आ जाता है फी फॉर फाइलिंग, SPIC, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0। स्टार्टअप कॉस्ट काफी 0 हो गई है फॉर प्रपोज्ड कंपनीज वेयर द ऑथराइज कैपिटल इज अप टू 15 लाख। अगर आपके ऑथराइज कैपिटल से 15 लाख है, एंड इन केस ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल और वेयर द नंबर ऑफ मेंबर आर अप टू 20 इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। Next, they require greater compliance. So, in exchange for convenience of easily accommodating funding, the private company startup need to meet the compliance under Companies Act. ऐसा नहीं है कि देखो आप अपनी मर्जी से बिजनेस करोगे, यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए भी काफी अच्छी खासी रेगुलेशन होती है, दैट इज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो आपको फॉलो करनी है। Fee tax advantage, the private companies assume to have many tax advantage, but this is not actually the case. There are some segment specific and industry specific advantage. देखो ये कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी को काफी ज्यादा टैक्स एडवांटेज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सेगमेंट्स जो टैक्स एडवांटेज होते हैं वो सेगमेंट स्पेसिफिक होते हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। जो टैक्स पे किया जाता है वो बेसिकली फ्लैट प्रॉफिट रेट पर किया जाता है, फ्लैट रेट पर किया जाता है ऑन प्रॉफिट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की अगर मैं बात कर रही हूँ, सो अ रिलेटिव चीपर अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एज रिक्वायर्ड फ्यूअर कंप्लायंस, इट मेन इंप्रूवमेंट ओवर जनरल पार्टनरशिप एज it limit the liability of partner limited and contribution of business and offer each partner protection from negligence, mislead and incompetence. देखो limited liability partnership is basically what, यहाँ पर क्या है कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एट द सेम टाइम यहाँ पर आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के क्या फीचर्स है? स्टार्टअप कॉस्ट की अगर हम बात करें, चीपर द स्टार्टिंग प्राइवेट कंपनी विद गवर्नेंस फीस ऑफ 55,000 अप्रॉक्स, नो पेड अप कैपिटल एंड लो कंप्लायंस कॉस्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट होती है, अगर आपको स्टार्ट करनी है कंपनी, देन आपको गवर्नमेंट फीस सिर्फ 5,000 रुपए पे करनी है, कोई पेड अप कैपिटल नहीं, नथिंग। Non-scalable business, if you are running a business that are unlikely to require equity funding, you may want to register as LLP, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको इक्विटी फंडिंग दैट्स अनलाइक, आपको इक्विटी फंडिंग नहीं चाहिए, देन आप LLP एज अ रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर जनरल पार्टनरशिप के सारे फायदे होंगे एंड आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। फेयर कंप्लायंस, यहाँ पर कंप्लायंस जो होती है वो काफी कम होती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है has made given some concession to LLP, उसने LLPs को काफी सारे कंसेशन भी दिए हैं। टैक्स एडवांटेज आपको मिलता है, पर्टिकुलरली इफ योर बिजनेस इज अर्निंग ओवर 1 करोड़ इन प्रॉफिट, LLP ऑफर टैक्स बेनिफिट। देखो अगर आपका बिजनेस 1 करोड़ से ऊपर अर्न कर रहा है तो LLP में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर की बात करें, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे पार्टनरशिप के केस में लिमिट था 20 पार्टनर ही हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं, जिसमें मैंने पार्टनरशिप फर्म आपको एक्सप्लेन ही कर दिया था क्या क्या फीचर है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना लॉस हुआ है कवर करना ही करना है, चाहे आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के देना पड़े। इजी टू स्टार्ट है, पार्टनरशिप डीड सेट करो, मतलब स्टार्ट करो, पार्टनरशिप डीड आपने बना ली है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए एंड मैक्सिमम 20। रिलेटिव इनएक्सपेंसिव की बात करें, जनरल पार्टनरशिप इज चीपर टू स्टार्ट देन LLP। LLP से अगर कंपेयर करोगे तो जो जनरल पार्टनरशिप है वो चीपर है टू स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप की फीचर की बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही पर्सन के द्वारा मैनेज होता है, फीचर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इजी टू स्टार्ट है, मैं चाहती हूँ अब बिजनेस स्टार्ट कर दूं, कर देती हूँ अगर मेरे पास उतने पैसे हैं तो। 1% कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आपके सोल एंटरप्रेन्योर होते हो आप, हाई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। मिनिमल टैक्स एडवांटेज, बहुत कम टैक्स एडवांटेज आपको मिलते हैं। स्टार्टअप कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो फी फॉर फाइलिंग SPIC, MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट इज रिड्यूस टू 0 फॉर प्रपोज्ड कंपनीज, ठीक है। अब कुछ कंपनीज के लिए ये 0 तक है,
बट वेयर द ऑथराइज्ड कैपिटल इज अप टू 10 लाख, मतलब अगर आपके ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है देन आपको फाइलिंग कॉस्ट 0 पड़ेगी. In case the company having share capital or where the number of member are up to 20, in case of company not having share capital. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ, आई होप समझ आ गई है क्लास. ओके, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. एंड रिवाइज जरूर करना और होमवर्क जरूर करना है. थैंक यू.